Hello students, I am Anamika Tiwari and today we will study about the 7th chapter of this book. The book name is Clear Light. So this is your 7th chapter. And the chapter name is Learn from Mahatma Gandhi. Means महात्मा गांधी जी से सीखिए. Find advantage in your disadvantage. Means that आपको अपनी कमियों में भी आपको अपनी अच्छाइयाँ तलाशनी चाहिए. Okay, so let's start our chapter. 2nd October is the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Last week, class teacher Mrs. Anita had asked the student to first go online, read about the life of Mahatma Gandhi and then share some lessons from his life with others. All students excitedly studied Gandhi's life to share some lessons with others. Sabir was quiet in class. Being a shy boy, he was wondering how he would be able to share his learning with others. Means that 2nd अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है. लास्ट वीक में पिछले वीक में क्लास टीचर मिसेस अनीता ने सारे स्टूडेंट से कहा था कि आप लोग ऑनलाइन गांधी जी की लाइफ के बारे में रीड करके आपको अपने क्लास में क्लासमेट में अदर स्टूडेंट से शेयर करनी है. सभी स्टूडेंट बहुत ही एक्साइटेड थे गांधी जी के लाइफ के बारे में जो भी सीख है वो शेयर करने के लिए. सबीर क्लास में शांत था. वह एक शर्मीला लड़का था, इसलिए वो सोच रहा था कि वो अपने लर्निंग को बाकी स्टूडेंट में कैसे शेयर करे. In class, Mrs. Anita called Rahul to first come and share his learning with the class. Rahul said Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869. He was the leader of Indian independence movement against the British rule. He led India's movement for non-violence and civil disobedience against the British. This led to India's independence on 15 August 1947. Gandhi is also called Bapu or the father of the nation. क्लास में मिसेस अनीता ने राहुल को पहले बुलाया अपनी लर्निंग क्लास में शेयर करने के लिए. राहुल ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. वह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने भारतीय आंदोलन, अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था. मीन्स उनका नेतृत्व किया था. गांधी जी को बापू या फादर ऑफ द नेशन में राष्ट्रपिता भी कहा जाता है. मिसेस अनीता कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट टू कम अप एंड शेयर देयर लर्निंग विद द क्लास. एट द एंड मिसेस अनीता कॉल्ड सबीर हु साइडली कम फॉरवर्ड and started speaking hesitantly. He said, I read Mahatma Gandhi's book, My Experiment with Truth, which inspired me. In it, Gandhiji confessed that he was a shy person. Sabir continued slowly and deliberately. While studying in London, Gandhiji joined a vegetarian society. Once he was asked to make a speech on vegetarian food. Though he had written his speech, he was unable to read it aloud. Someone taking pity read his discourse for him. मिसेस अनीता ने एक एक करके सारे स्टूडेंट को अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए क्लास में बुलाया और अंत में उन्होंने मिसेस अनीता ने सबीर को बुलाया जो शर्माते हुए सामने आया और हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया. उसने कहा कि मैंने महात्मा गांधी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ा जो मुझे बहुत इंस्पायर की. मीन्स उनकी किताब मुझे बहुत ही प्रभावित की. इसमें गांधी जी ने यह स्वीकार किया है कि वो एक शर्मीले इंसान थे. सबीर ने आगे धीरे धीरे और हिचकिचाते हुए कहा कि जब गांधी जी लंदन में पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन किया था. उनसे एक बार कहा गया कि वेजिटेरियन फूड पे स्पीच बोलने के लिए. यद्यपि उन्होंने अपना स्पीच तो लिखा लेकिन वो तेज से बोलने में उसे असमर्थ रहे. मीन्स तेजी से बोल नहीं पाए और उसमें से कोई ऐसा था जो उनका स्पीच बोला. After passing his examination in law from London, Gandhi started his law practice in Mumbai. When he appeared before the judge of his first case, he was so nervous that he could not say a word. He had to tell his client that he would not be able to pursue his case and that he should choose another lawyer for himself.
Sabir went on, his shyness was an apparent disadvantage for Mahatma Gandhi. लंदन में उनके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद वो अपना लॉ की प्रैक्टिस मुंबई में स्टार्ट कर दिए। जब वो अपना फर्स्ट केस लड़ रहे थे जज के सामने, तो वो इतना नर्वस फील कर रहे थे कि उनसे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब उन्होंने अपने क्लाइंट से कहा था कि जिसका वो केस लड़ रहे थे, उसने उनसे कहा था कि वो इस केस को नहीं लड़ सकते हैं आगे, इसलिए अब उन्हें कोई और लॉयर चूज करना चाहिए। सबीर ने आगे कहा कि जो उनका शर्मीलापन था गांधी जी का, वो उनकी एक सबसे बड़ी कमी थी। सबीर concluded, but I learned from Gandhi ji how we can turn our weakness into strength. Gandhi ji wrote later, my hesitancy in speech, which was once an annoyance, is now a pleasure. It has taught me that economy of word, and I can say that a thoughtless word hardly ever escaped my tongue or pen. सबीर ने लास्ट में कहा कि लेकिन मैंने गांधी जी से सीखा कि अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है, मीन्स अपने सबसे बड़ी कमजोरी को अपने सबसे बड़ी ताकत में कैसे चेंज करना है। गांधी जी ने लिखा है कि मेरी हिचकिचाहट स्पीच में कभी कभी मेरी परेशानी थी, जो आज मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और इसने मुझे सिखाया है कि मेरे वर्ड्स मेरी इकोनॉमी कैसे है, मीन्स मेरा वर्ड्स ही मेरी अर्थव्यवस्था है, और मैं आज बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हार्ड चीज क्यों ना हो। Mrs. Anita and the class were impressed with Sabir's presentation. He concluded, like Gandhi ji, I am also a shy person. Learning from Gandhi ji, I stand as an example of this lesson. Find an advantage in your disadvantage. Mrs. Anita said, every one of you brought out the lesson from the life of Gandhi ji effectively. Sabir, I particularly liked the way you applied the lesson to yourself. Mrs. Anita क्लास के सारे बच्चों के प्रेजेंटेशन से बहुत ही इम्प्रेस थी, स्पेशली सबीर के प्रेजेंटेशन से। सबीर ने लास्ट में कहा था कि मैं भी एक शर्मीला लड़का हूं जैसे कि गांधी जी थे, मैंने उनसे सीखा, उदाहरण के सामने मैं आपके सामने हूं। अपनी कमजोरी को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाइए, मीन्स दैट अपनी कमजोरी में भी अपनी अच्छाइयों को तलाशने का काम करिए आप। मिसेस अनीता ने कहा कि गांधी जी की लाइफ के बारे में आपने जो भी कुछ सीखा है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, लेकिन विशेष रूप से मुझे सबीर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने बहुत अच्छे से अपने ऊपर गांधी जी के लेसन्स को अप्लाई किया है। सी वेंट ऑन, गांधी जी shyness initially prevented him from speaking in public, but later this same shyness made him thoughtful and economical when he spoke and wrote. So we can find advantage in our disadvantage. Remember, there is a bright side to everything. Just make a habit to stay positive and look for it. मिसेस अनीता ने आगे कहा कि शुरुआत में जो गांधी जी का शर्मीलापन था उन्हें बोलने से रोक रही थी पब्लिक प्लेस में, मीन्स वो कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन बाद में वही शर्मीलापन आगे चल के उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी कि वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी लिख सकते थे और बोल सकते थे। इसलिए हमें अपने कमियों में भी अच्छाइयाँ तलाशनी चाहिए, और ये याद रखिए कि हर एक चीज का एक ब्राइट साइड होता है, ठीक है। जस्ट मेक इट हैबिट टू स्टे पॉजिटिव एंड लुक फॉर इट। हमें ये आदत में लाना चाहिए कि हमें पॉजिटिव हर समय कैसे रहना है और कैसे नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करनी है। सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी लर्न दैट इफ यू आर नॉट disheartened from an apparent weakness, soon you will learn how to harness the weakness and use it as your strength for your development. Means that हमें कभी भी अपने कमजोरी से हताश नहीं होना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए और जल्द ही हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाएगी और इससे हमारी पर्सनालिटी जो है वो आगे चल के डेवलप होगी।